Assalamu alaikum students. Today we will study about different blocks present in the modern periodic table. So आज हम ये देखेंगे कि modern periodic table के अंदर कौन कौन से blocks present हैं। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये जो स्केच दिया हुआ है periodic table का, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि टोटल वी हैव 8 groups and 7 periods in the periodic table. Vertical columns are called as groups while horizontal rows are called as periods. अब आप ये देखें कि you can clearly differentiate between A subgroups and B subgroups. अब this is group 1A, this is group 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and 8A. Between the group 2A and 3A, this central block of element present in the B subgroups, these are transition elements. Now group 1A and 2A elements are called as S block elements, while group 3A to 8th A elements are called as P block elements. This central block transition elements, these are called as D block elements present in the B subgroup, और they are also called as outer transition elements. While ये जो नीचे वाली दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम F block elements कहते हैं. These are also called as inner transition elements. So in the periodic table we have metals on the left hand side while non-metals on the right hand side, and these staircase elements, these are metalloids. They have metallic properties as well as non-metallic properties. Transition elements and these F block elements, these are also metals. So 1A and 2A elements are called as S block elements because their outer electrons enters into the S orbitals, while 3A to 8th A elements are P block elements because their outermost valence electrons enters into the P orbitals. These D block elements, they have incomplete inner shells, they have variable valencies. These are outer transition elements. अब आप ये देखेंगे जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ ये आपको नज़र आ रही होगी. इसमें ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये एलिमेंट्स हैं 6th पीरियड के, जबकि एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं 7th पीरियड के. पीरियड्स हमारे पास ये होते हैं, फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, टोटल 7 पीरियड्स हैं. तो अगर आप 6th पीरियड में देखें, बल्कि पहले में हम आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में. फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम. सेकंड पीरियड ये वाला है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. सिमिलरली थर्ड पीरियड हमारे पास ये है, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पीरियड में देखें आपको एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, लेंथेनम 57, La57. इसके बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है, Ce58 से लेकर Lu71 तक ये नीचे बॉटम में प्रेजेंट हैं. इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, और उसके बाद ये बाकी ये पीरियड जाता है. इसी तरह 7th पीरियड में एक एलिमेंट होता है एक्टिनम 89, उसके बाद TH90 नीचे प्रेजेंट है. ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये नीचे हम प्रेजेंट हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनको सेपरेट करके हम नीचे पीरियोडिक टेबल में इनको सेपरेट किया गया है. So these are lanthanides and actinides. These are F block elements and these are also inner transition elements. And this whole periodic table is divided into 4 blocks: S, P, D and F block elements. Now आपको पता होना चाहिए कि metals periodic table की जब left side पे हैं तो metals की ये tendency होती है, they have the ability to lose electrons, while non-metals have the tendency to gain electrons. So metal always form cations while non-metal always form anions. So आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी cations और anions में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. अब आप ये पीरियोडिक टेबल को देखें. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि मैग्नीशियम कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में है, तो आप पीरियोडिक टेबल सामने आपके खुला हुआ है, आप इजीली बता सकते हैं कि दिस इज़ द एलिमेंट मैग्नीशियम, Mg. अब ये ग्रुप 2A में है, आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 2A. वाइल इसका पीरियड नंबर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड.
इट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड इन ग्रुप 2A। सो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट ग्रुप एंड पीरियड्स तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट इजीली हम पीरियोडिक टेबल को देख के बता सकते हैं। दूसरा तरीका एलिमेंट्स को की आइडेंटिफिकेशन का या एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड को फाइंड करने का होता है बाय राइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको पीरियोडिक टेबल में ये पता हो जाना चाहिए क्लियर कट कि आपसे कोई भी ग्रुप या पीरियड आपको देख के आप इजीली फॉर एग्जांपल अगर आप सल्फ़र को देख लें, सल्फ़र दिए S, इट इज़ प्रेजेंट इन 6th A ग्रुप वाइल इट्स पीरियड नंबर इज़ 3, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। तो हॉरिजेंटल रोज पीरियड्स होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 8 A ग्रुप्स हैं, अगर हम B को भी मिला लें तो 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। सो पीरियोडिक टेबल की वजह से हम एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ईजीली। So this modern periodic table of elements represents the arrangement of elements in the increasing order of their atomic numbers.